Hi everybody, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So as you have already read the title, we are going to talk about JEE BARC 2 months preparation strategy. So guys, the examination is almost around the corner. Now every year the examination is held approximately Jan end से लेके Feb starting में होता है. So that is what I am considering right now. It's approximately only 2 months left. Guys, video थोड़ी सी लंबी होगी, but definitely it will be very helpful for you because I am going to be telling you all the topics और हर चीज़ बताऊंगी, छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगी ताकि आपकी 2 months की preparation strategy realistic हो and बहुत अच्छी हो. Basically guys, if you want to take admission through JEE BARC, then your aim should be taking admission through JOSA counseling. Because JEE से admission लेने के 3 तरीके होते हैं. एक तो आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया, एक आपकी स्टेट काउंसलिंग हो गई एंड थर्ड इज जोसा काउंसलिंग. प्राइवेट कॉलेज और स्टेट काउंसलिंग में तो आपका नाटा से भी एडमिशन हो जाता है, विच इज़ अ लिटिल बिट ईजियर एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर फॉर. बट अगर आप इतनी मेहनत करके JEE BARC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देन योर एम शुड बी डेफिनेटली टेकिंग एडमिशन थ्रू जोसा काउंसलिंग. नाउ द कॉलेजेस विच आर देयर थ्रू जोसा काउंसलिंग, मेनली द टारगेट कॉलेजेस आर SPAs एंड द NITs. बट प्रॉब्लम ये है कि जोसा काउंसलिंग से सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 सीट्स हैं टोटल. सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 कॉलेजेस. अगर हर कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 40-50 सीट्स भी हैं, तब भी आपके सिर्फ और सिर्फ 400 to 500 सीट्स ही बने. अप्रोक्सीमेटली 1 lakh स्टूडेंट गिव JEE BARC एग्जामिनेशन एंड योर रैंक शुड बी at least under 1000 to get admission through JOSA counseling. तो आप सोच सकते हो कि आपको प्रिपरेशन लेवल क्या रखनी पड़ेगी to get admission in SPAs and NITs. If you haven't started your preparation, then ये वीडियो जल्दी से देखो, पूरा देखो, अच्छे से देखो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम नाउ. ओके गाइज, सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज, एक हाई रैंक या फिर हाई परसेंटाइल लाने के लिए आपको तीनों ही सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट JEE पेपर 2 एग्जामिनेशन, देन देयर आर 3 सेक्शंस व्हिच यू ऑलरेडी नो: एप्टीट्यूड, JEE मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग. अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में या किसी भी एक सेक्शन में कम मार्क्स लाते हो, देन योर overall percentile or your overall rank will also come down. So that is why you have to make sure that तीनों सेक्शंस में आपको अच्छा परफॉर्म करना है. काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं दैट वो JEE मैथ्स की प्रिपरेशन ही स्किप कर देते हैं. Don't make this mistake. It is not that difficult to score good marks in JEE Mathematics if you have the right preparation strategy. Now guys, let us talk about the preparation strategy of each subject one by one. So guys, सबसे पहले हम marking समझते हैं that किस subject की कितनी weightage है और कितने marks हैं. Now the examination is of 400 marks. Out of that, 100 marks is for JEE Mathematics, 200 marks is for aptitude and 100 marks is for drawing. देखने में लग रहा है कि अरे aptitude is for 200 marks, that means it's the most important thing, but that's not the case because aptitude is a little bit easier to prepare. That is why चाहे वो 200 मार्क्स का हो या 100 मार्क्स का हो, उसमें टाइम कम देना पड़ता है in comparison to mathematics and drawing because aptitude is a little bit easier. First, let us talk about the preparation strategy of mathematics, of JEE Mathematics. Now, a lot of students ask me that JEE Mathematics क्या easy होती है BTech वाले एग्जाम से या tough होती है? See guys, the examination level of JEE Mathematics for BARC paper, that is JEE Mains paper 2, is almost the same as JEE paper 1. The syllabus comprises of 11th grade mathematics and 12th grade mathematics. Topics तो वही होते हैं, but जो questions आते हैं वो थोड़े से high level के होते हैं, थोड़े से tough होते हैं. Now guys, if you would have had one full year, then तो मैं आपको ये suggest करती कि आप सारे topics करो, focus on as much marks as possible. But when we are talking about 2 months preparation strategy, then it is not possible for anybody to complete the entire syllabus and focus on everything. So because of one very big fact, that is negative marking. क्योंकि aptitude और JEE Mathematics दोनों में ही negative marking है, due to this reason you have to be very sure for your answers which you are marking or ticking or whatever selecting. तो जो भी आंसर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको श्योरली पता होना चाहिए दैट इट इज करेक्ट.
तुक्का नहीं चलेगा. So when we talk about 2 months preparation strategy, please select some topics and prepare it so well कि उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ जाए you should be able to surely attempt it correctly. This is a very right strategy to prepare for JEE BARC examination in 2 months. देखो ऑनेस्टली इस चीज़ से आपको थोड़ी सी खुशी भी होगी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट जेई मैथमेटिक्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर वेरी बैड मार्क्स इन जेई मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीरियसली जेई BARC एग्जामिनेशन देते भी नहीं हैं. तो यही रीज़न है कि अगर आप 100 में से 60 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, 50 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, यू विल गेट अ गुड रैंक. सो प्लीज सेलेक्ट सम टॉपिक्स विच यू आर गुड एट, विच यू फील कि हाँ हमने इसको बहुत अच्छे से कर रखा है. वो टॉपिक सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू सम टॉपिक्स जो थोड़े से ईजी होते हैं मोस्टली सबके लिए. आपकी टॉपिक लिस्ट अपनी भी हो सकती है विच यू फील इज ईजी, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग विच यू शुड कंसिडर बिकॉज इन टॉपिक से थोड़े ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट तो कर लोगे और वो सही भी हो जाते हैं. तो द टॉपिक्स व्हिच आई एम सजेस्टिंग यू इज मैथमेटिकल रीजनिंग आप करो, सेट्स, प्रोबेबिलिटी, statistics, matrices and determinants, 3D and vectors. So guys, if you are doing all these topics, but आपको ये याद रखना है कि 2 months में आपको ये सारे topics बहुत अच्छे से करने हैं. Minimum you have to do NCERT exemplar, and आपको किसी भी book में इन topic से पहले जो questions आए हुए हैं in JEE examination वो आपको मिल जाएंगे. So you need to minimum solve all these 3 things. So guys, suppose in week 1 you are doing the topic probability, तो probability आपको एक पूरा week लगाना है, बट आपको प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे से करनी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो. यू हैव ओनली 6 weeks टू कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स. एक टॉपिक आपको एक वीक में करना है. So guys, in the last 2 weeks what you have to do is you have to take all the previous year papers of JEE BARC and then you have to open the mathematics section. वहां से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करे हैं उसमें से, राइट? So I am assuming that approximately आप 10 questions तो solve कर ही लोगे if you have done all the topics. So if you are sure shot solving 10 questions, आपके 40 marks तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं. And that too I'm talking the minimum. 60 marks तक आप आराम से JEE Mathematics में score कर सकते हो with the right preparation. And your target should be 60 marks because if you have scored 60 marks, your percentile is going to come good. So I hope all of you have understood regarding the mathematics part. Now let's talk about the aptitude section. So aptitude section is of 200 marks. उसमें 50 questions होते हैं. Now approximately in the aptitude section 100 marks is only for 2D 3D visualization. In 2D 3D visualization you have more topics. So 2D 3D visualization जो topic है उसमें से आपको जो prepare करना है that is going to be top view, elevation, surface counting, mirror images, hidden figures, completing figures and sequence. So guys, to score this 100 marks, it is not that difficult for anybody to score this 100 marks. ये बहुत easy होता है 2D 3D visualization. इसमें अच्छे marks लाने के सिर्फ 2 ही steps होते हैं. First, understanding the concept and second is practice. ये चीज़ अगर आपको याद हो गई that you have to first understand the concept and practice, understand the concept and practice. In the aptitude part, this 100 marks will go nowhere. Seriously, ये बहुत easy सा topic है 2D 3D visualization. But how we prepare the students in our institute is to making them understand the concept via 3D models. तो हम लोग क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेते हैं we use softwares to explain the students via 3D models the entire concept of 2D 3D visualization. फिर वो concept ही इतना अच्छे से समझ जाते हैं तो उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, right? But yes, when they are solving the question, they might take a little bit more time. So that is why we provide the students a lot of tests which are there, lot of practice questions. तो उसके बाद जब वो concept समझने के बाद वो practice करते हैं तो फिर वो पहले तो समझ चुके होते तो सही तो करते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते दे डू इट इवन मोर फास्टर. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज वेल. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल. अगर आप सीधा प्रैक्टिस पे जाओगे दैट इज द रॉन्ग टेक्निक. तो सीधा आपको प्रैक्टिस नहीं करना बिकॉज आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है बट दैट विल बी रॉन्ग.
ओके, सो यू डोंट हैव टू डायरेक्टली प्रैक्टिस, फर्स्ट यू हैव टू टेक योर टाइम आउट. आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 months you have to practice all the questions religiously every single day to score this 100 marks, which can be scored very easily. तो आप इसको प्लीज इन 100 मार्क्स को गवाना मत, अच्छे से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो डेली, आज से करो, ये 100 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे. वी ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट टू आवर स्टूडेंट. आवर मॉक टेस्ट आर अगेन टाइम बेस्ड, 3 घंटे का होता है. उसमें सब कुछ मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, सारे पार्ट्स होते हैं, एंड दैट गिव्स द स्टूडेंट्स अ रियलिटी चेक कि उनके कितने मार्क्स आने वाले एग्जामिनेशन में, एंड वेयर दे आर एक्चुअली लैकिंग, वेयर दे नीड इम्प्रूवमेंट. सो इफ यू वांट द मॉक टेस्ट you can visit our website. I will provide all the links in the description box below. We have also launched a lot of crash courses and a lot of courses for JEE, BARC and NATA preparation. So in case you are interested, you can check it out. I'll provide all the links in the description box below, or you can call on the number which is there on the screen. Now guys, the next part of aptitude which you absolutely don't have to skip, you cannot skip, because aptitude ही ऐसा section है जो आपने अगर अच्छे से prepare कर लिया, आपके आराम से 160-150 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, because it's a very scoreable topic. It's a very scoreable section जो कि आप बहुत easily score कर सकते हो, and that will help you to increase your percentile and your rank as well. पहला पार्ट आपका 2D 3D विजुअलाइजेशन का हो गया, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. बट नेक्स्ट पार्ट इज नॉट अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट इज अबाउट रोट लर्निंग, बिकॉज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है नेक्स्ट पार्ट. द टॉपिक्स विच आर देयर विच यू हैव टू प्रिपेयर इन दीज 2 months are building construction and materials, फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स. तो काफ़ी सारे क्वेश्चन फेमस आर्किटेक्ट्स पे आ जाते हैं, फेमस बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाती है, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं. सो प्लीज डू नॉट स्किप इट. इन आवर इंस्टीट्यूट हाउ वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स इज वी गिव देम अ ग्रुप एक्टिविटी. तो ग्रुप एक्टिविटी में सबको एक एक आर्किटेक्ट का नाम दे दिया. ओके, नाउ दे डिस्कस टुगेदर, दे मेक द ग्रुप प्रेजेंटेशन. उसके बाद ड्यू टू द फ्रीक्वेंट डिस्कशन वी मेक देम लर्न ऑल द आर्किटेक्ट्स इन अ वेरी फन वे. तो ये हमारा अप्रोच है प्रिपेयर करवाने का. वी ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ई बुक्स ऑन ऑल द फेमस बिल्डिंग्स फ्रॉम एवरी सिंगल स्टेट. तो उससे भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आती है. अगर आप 2 months में खुद से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको सारे स्टेट में से सारी फेमस बिल्डिंग्स शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी और फिर उसको लर्न करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे अकॉर्डिंग टू मी. इन केस यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टू बाय द स्टडी मटेरियल, फिर भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे क्वेश्चन शॉर्ट आते ही हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर टू. यू विल ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर आर्किटेक्चरल थ्योरी एंड आर्किटेक्चरल टर्म्स. बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं विच इज यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स ओनली, एंड दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स लाइक कैंटिलीवर्स, आर्चेस, डोम्स. तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो नाटा और JEE BARC दोनों में आ जाते हैं. सो दैट इज वाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आर्किटेक्चरल टर्म्स. यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर फेमस बुक्स एंड पेंटिंग्स. सो बेसिकली आर्किटेक्चरल अवेयरनेस शुड बी देयर. आर्किटेक्चर के बारे में आपको बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो. सो आर्किटेक्चरल अवेयरनेस यू हैव टू स्टडी. हाउ वी प्रिपेयर इन आवर इंस्टीट्यूट इज बिकॉज कि आर्किटेक्ट्स ही पढ़ाते हैं बच्चों को, तो दैट इज वाई दे टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड क्रिएट आर्किटेक्चरल अवेयरनेस इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल क्लास. तो अलग से इसकी हम कोई प्रिपरेशन नहीं करवाते, बिकॉज जब क्लासेस होती है, डिस्कशन होता है, तो ऑलरेडी students be aware about architecture a lot. So students already become aware about architecture due to the interaction. For the preparation of general knowledge also you can give 1 to 2 days. आप उसमें बुक्स पढ़ सकते हो, जो recent news है उसके बारे में थोड़ा अवेयर हो सकते हो. But even if you skip the topic general knowledge, that's completely fine, because नहीं पता होता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए. तो 2 months के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है. Lastly, please prepare about color theory, color psychology, color schemes, terms and color combinations. ये जो ऐसी चीज़ है ना, आप प्लीज़ करके जाओ, बिकॉज ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. 4 to 5 hours में इसका प्रिपरेशन खत्म हो सकता है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस विल कम एंड आप इजीली इसमें स्कोर कर पाओगे. सो डोंट स्किप दिस टॉपिक. तो ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव टोल्ड यू इन टुडेज वीडियो, पहले पे हमने 2D 3D विजुअलाइजेशन की बात की, एंड दूसरे में हमने थ्योरेटिकल टॉपिक्स की बात की. ये सारे टॉपिक्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करो एंड कंप्लीट इट इन दीज 2 months. बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाएगा.
जाएगा, ठीक है। एवरी डे इफ यू आर गिविंग अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स ऑल्सो मैक्सिमम, तब भी आपके ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। सो एवरी डे विच टॉपिक यू गोना डू, प्लीज मेक अ लिस्ट योरसेल्फ। इतना ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए हो। सो प्लीज मेक अ लिस्ट योरसेल्फ कि आप हर दिन कौन सा टॉपिक करोगे, एंड ऑल दीज टॉपिक्स विल बी कंप्लीटेड वेरी वेरी इजीली। एंड लास्टली गाइज, फॉर द ड्रॉइंग पार्ट, 2 महीने में ड्रॉइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना जो लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है, वो गलत कहते हैं। पॉसिबल है, बट ओनली विद द राइट टेक्निक। मैं इसमें आपको टॉपिक्स तो अभी बता दूंगी, बट ओनली विद द राइट टेक्निक यू कैन इम्प्रूव इन योर ड्राइंग पार्ट। अगर आप सोचोगे कि मुझे ऑलरेडी आती है और मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अच्छा बना लूँगा डेली प्रैक्टिस करके, ऐसा नहीं होगा। You have to change the approach in which you draw things and learn new and simple, fun, easy techniques, जिससे आप बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे ड्राइंग्स प्रिपेयर कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिसके बिना ही लोग जेईई पेपर 2 एग्जामिनेशन देने चले जाते हैं ड्राइंग वाला पार्ट। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। प्लीज डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप। प्लीज फोकस ऑन लर्निंग न्यू टेक्निक्स एंड टेकिंग गाइडेंस, बिकॉज 2 महीने में ड्राइंग अगर आप सही में इंप्रूव करना चाहते हो तो किसी टीचर के गाइडेंस के बिना आपका कुछ भी इंप्रूव करना इन द ड्राइंग पार्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। द 4 टॉपिक्स which I'm going to suggest you that you should absolutely prepare. The first is portrait and human body proportions. तो portrait and human body ये तो आपको skip करना ही नहीं है, because portrait is coming back to back every single year and that makes it really really important. Number 2 is perspective sketching. If you don't know perspective sketching yet, then please don't have any hope from the drawing part. आपका drawing part में अच्छे percentile नहीं आ पाएंगे। Perspective sketching is absolutely important to learn. 1 point perspective and 2 point perspective minimum. Third is 2D 3D composition. The composition question comes every single year. 2D compositions and 3D compositions. If you don't know even yet that why these questions are asked, 2D composition and 3D compositions, then please you need to start your preparation. आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है अगर आपको ये भी नहीं पता कि 2D कॉम्पोजिशन आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्यों पूछते हैं। सो दैट इज़ वाई प्लीज़ प्रिपेयर अबाउट 2D कॉम्पोजिशन एंड 3D कॉम्पोजिशंस। स्पेशली 2D कॉम्पोजिशन इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ मोर थियोरेटिकल, क्योंकि जो 2D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सारे नहीं पता है, द थियोरेटिकल पार्ट, देन यू वोंट बी एबल टू मेक अ गुड 2D कॉम्पोजिशन। लास्टली यू हैव टू लर्न पेंसिल कलरिंग एंड पेन रेंडरिंग। These 2 things are again very important. Basically कोई भी रेंडरिंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इन 2D एंड 3D कॉम्पोजिशन, इवन इन पर्सपेक्टिव स्केचेस, आप किसी ना किसी तरीके की रेंडरिंग जरूर करोगे। इधर इट कैन बी पेन रेंडरिंग और पेंसिल कलर्स और पेंसिल शेडिंग। सो प्लीज फोकस ऑन पेंसिल शेडिंग, पेंसिल कलर्स एंड पेन रेंडरिंग एटलीस्ट। ये 4 टॉपिक आपको जरूर करके जाने हैं। यू कैन गिव 2 weeks फॉर एवरी सिंगल टॉपिक एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द ड्रॉइंग पार्ट एज वेल। अगर आपको ड्राइंग पार्ट में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, बिकॉज आई एम श्योर कि ड्राइंग पार्ट के लिए इतना ही बहुत नहीं होगा। आई विल डेफिनेटली टेल यू मोर अबाउट द टेक्निक्स एंड हाउ एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर द ड्राइंग पार्ट, बट आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ड्राइंग पार्ट पे थोड़ा और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी कोई भी नई वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आगे कौन सी वीडियोस देखनी है, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियोस लेटर। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।